Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class. So that is English for grade 1. We are learning Unit 11. Its title is Scientist. So we are going to start it. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. First, we'll discuss about it and then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we learn words showing possession, and we'll cover the SLO to identify and use words showing possession, my, your, his, her, our, and their. Lecture 2, under the title of language focus, we'll learn about consonant cluster, and we'll cover the SLO to identify initial consonant clusters. Lecture 3, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to locate some specific factual information. Lecture 4, we'll continue and complete the reading and comprehension of this unit, and we'll cover the SLO to locate some specific factual information. Lecture 5, under the title of oral communication skill, we'll learn about different communicative functions, and we'll cover the SLO to use appropriate body language for different communicative functions. Lecture 5B, under the title of oral communication skill, we learn how to listen and respond to a few commands, and we'll cover the SLO to listen and respond to a few commands. Lecture 6, under the title of reading and thinking skill, we'll cover the SLO to pronounce and match spoken words with written words, and we'll cover the SLO to pronounce and match spoken words with the written words. Lecture 7, we learn to make a greeting card, and we'll cover the SLO to recognize the conventions of a greeting card, draw illustrations to make greeting card, write names of addressee and sender, write appropriate words and formulated expressions. Yes, my dear fellow teachers and my dear children, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's find out what this unit is all about. Ji beta, the title of this unit is Scientist. Actually beta, आपने देखा है आपके जितने भी इर्द गिर्द बड़े हैं वो सब कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई काम करते हैं, राइट? That is known as profession, कि ये उनका प्रोफेशन है. कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है. सो बेटा अपने स्किल्स को जब आप प्रैक्टिकली यू डू समथिंग दैट इज नोन एज प्रोफेशन, और हर एक को कुछ ना कुछ करना चाहिए. ये आपकी नीड होती है, आप अपना करियर बनाते हैं और इसी से आप पूरा अपना सिस्टम चलाते हैं, राइट? सो इस यूनिट में जिस प्रोफेशन की बात की गई है वो है साइंटिस्ट. तो देखते हैं साइंटिस्ट कौन लोग होते हैं. साइंटिस्ट आर क्यूरियस पीपल. जो साइंसदान होते हैं वो बहुत मुतजस्सिस होते हैं, मीन्स वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गौर करते हैं, सोचते हैं ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है वगैरह. तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्यूरियस पीपल. दे लाइक टू डिस्कवर, वो दरियाफ्त करना चाहते हैं, एंड इन्वेंट, और इजाद करते हैं चीजें, वो चीज़ों को. और बेटा डिस्कवर का मतलब है एक ऐसी चीज जो पहले से मौजूद है और आप उसके बारे में बताएं, उसको कहते हैं डिस्कवर. और इन्वेंट कहते हैं ऐसी चीज जो पहले नहीं है और आप उसको बनाते हैं. जैसे जमीन के अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स, मादनियात वगैरह हैं, इसको कहते हैं डिस्कवर करना. और साइकिल से मोटरसाइकिल बनाना या गाड़ी बनाना जो पहले से मौजूद नहीं है, इसको कहते हैं इन्वेंट करना, राइट? तो ये काम करने के लिए फॉर बोथ दीज थिंग्स आपको सोचने की, उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि हाउ टू डू इट, राइट? सो दिस इज हु डज इट, साइंटिस्ट. दे आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत से सवाल पूछते हैं, ठीक है? और बेटा ये क्वेश्चंस वो दूसरों से तो क्या खुद से पूछते हैं. एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, कार में जाते हैं और हमें फॉर एग्जांपल 2 घंटे लगते हैं. तो इस ट्रैवलिंग को 1 घंटे में कैसे कवर किया जा सकता है? अब ये टाइम को काम करना वो समझते हैं कि इसको ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए. तो फिर हम ट्रेन बना लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन. दिस इज हाउ फिर चीजें आगे से आगे
मूव करती हैं, राइट. सम साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप. कुछ साइंसदान माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होती है, इसको खुर्दबीन कहते हैं, वो यूज करते हैं एंड वर्क इन साइंस लैब, और वो साइंस लैब के अंदर काम करते हैं. ऐसी होती है माइक्रोस्कोप. खुर्दबीन जो है असल में होता क्या बेटा, इसके यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर आप कोई भी छोटी सी चीज रखते हैं इसकी इस प्लेट के ऊपर, और ये लेंस के थ्रू जब आप उसको देखते हैं तो आपको बड़ी करके दिखा देती है माइक्रोस्कोप. तो इससे जो छोटे छोटे, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, तो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बड़ा करके दिखाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो आला यूज होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, और साइंटिस्ट ये साइंस लैब में यूज करते हैं. दे डू एक्सपेरिमेंट्स इन द साइंस लैब. वो अपनी साइंस की लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं. अदर साइंटिस्ट एक्सप्लोर एंड डू रिसर्च आउटसाइड. और दूसरे साइंसदान जो हैं वो बाहर, यानी वो लैब से बाहर भी काम करते हैं और चीज़ों के बारे में जानते हैं. दे वेयर अ वाइट लैब कोट. वो एक सफ़ेद रंग का लैब कोट पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, अपने जिस्म को महफूज करने के लिए, क्योंकि बेटा वो बहुत से केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं तो उनको अपने आप को सेव करने की जरूरत होती है. दे वेयर ग्लासेस. वो चश्मे पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर आईज, अपनी आंखों को महफूज रखने के लिए. एंड दे ऑल्सो वेयर ग्लव्स. वो दस्ताने भी पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देयर हैंड्स, अपने हाथों को महफूज रखने के लिए. तो बेटा इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम कोई काम करते हैं तो अपनी हिफाजत हमारा फर्ज है, ठीक है, अपने आप को सेव करके फिर आप वो काम करें. दे वर्क हार्ड. वो बहुत मेहनत करते हैं एंड फाइंड सॉल्यूशंस. और वो हल निकालते हैं ऑफ द प्रॉब्लम्स, मसलों का, वो मसलों का हल निकालते हैं. सो दिस इज हाउ अ साइंटिस्ट वर्क. और बेटा हर प्रोफेशन जो है उसमें काम करने वाले मेहनत करते हैं, और ये अल्लाह ताला की तकसीम है कि हर एक को अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है जिसके लिए आप पूरी मेहनत करते हैं. अगर हम उस्ताद हैं तो हम भी आपको समझाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं. इसी तरह बेटा हर प्रोफेशन की अपनी एक रिस्पेक्ट है और हर एक को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, राइट. और हमें खुद भी सोचना चाहिए कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा या क्या बनूंगी, और इसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए, राइट. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, ही इज अल्लाह द वन, Allah the self-sufficient, he begets not nor begotten, and no one is equivalent with him. So बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो अल्लाह है, और अल्लाह is only one, और अल्लाह के अलावा हम सब जो मखलूक़ात हैं वो अल्लाह की मोहताज हैं. तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हमें तौफीक दे, और हम सख्त मेहनत करें और अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, और अच्छा करियर अपना कर हम अपनी सोसाइटी का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल इंशाल्लाह इसके ग्रामर के लेक्चर से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे. उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.